Hello everyone, welcome to the another session of Information and Technology. Hope you all are doing well. Today we will continue in the same chapter that we have started in the last class, that is Advanced Spreadsheet. Like I told you, in this chapter or in one more chapter we have where we will talk about some very important topic, which is some very important tool or features of spreadsheet, which is very helpful for making complicated analysis in spreadsheet. In the last class, we discussed two topics, that is consolidating data and subtotal. Then today, in the next three topics, we will talk about what if analysis, where we will talk about scenario, goal seek, and solver. Now, before we start these three topics, it is very important to understand the purpose of what if analysis. अगर आप इसके बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन में ना जाए, थोड़ा सा इन जनरल अपने आप में समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इफ को ही अगर हम लोग एक लैंग्वेज के फॉर्म में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के फॉर्म में अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो व्हाट इफ मतलब क्या होगा. ठीक है, अगर ये तो क्या यहाँ पर. सो बेसिकली दिस is a tool which gives an idea about the future, helps the decision maker to make some decision, and this is something that is a great help to a management to make or lay out or draft their plan for the upcoming time. Now, if you go through the paragraph given in your book, you will have a very good description over here about the what if analysis, the uses of what if analysis. Because here you can just see in the third line, when we talk about the decision, when we talk about the decision making process in any institution, in any organization, whether they are selling anything, whether they are selling products, they are giving some services, they always have a plan to make more and more profit. And they make these plans only after analyzing the performance of last few quarter or last few years. So in spreadsheet, when the data is getting represented to the higher management, they automatically get the help of what if analysis to find out, to draft, to design the plan for the upcoming time, where actually they can see a great hike in their benefit. तो व्हाट इफ एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि अगर मुझे इस टारगेट को अचीव करना है तो मुझे किस पर्टिकुलर एरिया में वर्क करना होगा. ठीक है, इसका हम लोग बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे. जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे भी आगे, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिए आपके 4 पेपर के एग्जाम्स हो चुके हैं, आपको 4 पेपर का मार्क्स भी आपने एक एवरेज ऑन एन एवरेज एक अप्रोक्स कैलकुलेट कर लिया है. मान के चलिए आपका एक मेजर सब्जेक्ट बचा हुआ है. आपका अभी 4 पेपर का एग्जाम के बाद आपका 87% मार्क आ रहा है. आपका एक पेपर बचा हुआ है, आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट ओवरऑल 90 प्लस हो. तो आप यहाँ पर एक टारगेट लेके चलोगे कि मुझे कितना स्कोर करना होगा 5th पेपर में, जिससे कि मेरा जो मार्क है, जो भी मेरा ओवरऑल परसेंटेज है, वो 90 प्लस जाए. तो व्हाट इफ एनालिसिस इस तरह की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में, डिजाइन करने में, निकालने में काफी हेल्प करता है. ठीक है, इसमें 3 टूल हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे. एक है सिनारियो, एक है गोल सीक और एक है सोल्वर. These three are very powerful tool which is there in the what if analysis option in spreadsheet. Let's see. Start with the scenario. So here these steps are given over here in the based on calc, but I tried in calc, I got some error, though I do follow the steps same as mentioned in the book. So I tried in MS Excel and worked very nicely over there. So let's show you the example of scenario through this particular example. Please be very attentive and try to understand. This is a kind of data which I have already fed up, just given over here, so I just can save my time. तो ये एक वेबसाइट है अपना अड्डा.com. मान लीजिए वो गेम सेल करती है. ठीक है, इस तरह के मैंने कुछ गेम का नाम लिख दिया है. मुझे कोई आइडिया नहीं है किसी भी गेम का, बहुत थोड़ा बहुत बस वर्ड ऑफ माउथ से जो भी मुझे सुनने को मिलता है
मैंने गूगल करके इसको लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सो प्लीज डोंट कोट मी ऑन एनी पर्टिकुलर गेम कि सर आप ये गेम खेलते हैं कि नहीं, ये गेम अच्छा है या ये गेम खराब है। डोंट say anything like that or don't give any comment in the comment box regarding the selection of the games. Okay, I've just searched in the Google and I've just thought let me write these things only over here. अब वो जो वेबसाइट है हर गेम को अलग अलग प्राइस में सेल करती है, ठीक है। और ये 3 महीने का उन्होंने एक रिकॉर्ड दिया कि जैन में फोर्टनाइट को उन्होंने 5 सेल किया था, 5 कंज्यूमर को, इन्होंने फैब में 6 कंज्यूमर को, मार्च में 9 कंज्यूमर को, ठीक है। एक कंज्यूमर से वो कितना लेती है, 150 रुपीज। तो इस तरीके से वो अलग अलग गेम का यहाँ पर मैंने डेटा फीड किया हुआ है, रैंडमली वैल्यू सेट किया हुआ है। तो 5, 6, 11, 9, 20, तो उन्होंने 3 मंथ में टोटल कितना फोर्टनाइट का गेम सेल किया, 20 पीसेस और 20 यूजर्स को। एक कट 150 प्राइस, तो टोटल कलेक्शन से कितना मिला फोर्टनाइट से उनको, 3000 रुपीज। इस तरीके से अलग अलग गेम का मैंने एक डेटा डाला हुआ है। यहाँ पर मैंने पहले से फॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सम का फॉर्मूला लगाया है यहाँ से यहाँ तक, C3:E3 इंटू B3, यानी ये प्राइस से इंटू हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इसी को मैंने ड्रैग कर दिया, तो यहाँ तक ये सेम फॉर्मूला है और यहाँ पर मैंने टोटल कर दिया, इन सारे को सम कर दिया है। फिर से मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, बस नॉर्मल इज इक्वल टू सम किया है, कहाँ से कहाँ तक सम किया है, जैन से मार्च तक, यानी C3 से E3 तक इंटू B3, इतना कर दिया है। अब सिनारियो का यूज करते क्या क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपको सिनारियो को यूज करना है, तो आप पहले डेटा में जाएंगे, ऊपर में मेन्यू बार में डेटा दिख रहा होगा, यहाँ आपको व्हाट इफ एनालिसिस दिख रहा है, इसमें आप सिनारियो मैनेजर में जाइए, ठीक है। सिनारियो मैनेजर में जाने के बाद आपको इस तरह का एक विंडो दिखेगा। अब इसमें आपको 3 ऑप्शंस में सेट करता हूँ, ठीक है। आप किस तरह का ऑप्शन सेट करते हैं देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जाएंगे ऐड में, सिनेरियो का नेम आप दे सकते हैं, आप अपना नाम डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह का सिनेरियो डिसाइड करना चाहते हैं, आप क्या एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये मेरा करंट सिनेरियो है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, करंट नाम से ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब करंट सिनेरियो जो भी है, आप यहाँ पर लिख रहा है चेंजिंग सेल। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अभी आपका ये डेटा है सब अलग अलग मंथ का, मार्च का डेटा को मैं मैनिपुलेट करके आपको दिखाना चाहता हूँ, because I think in the month of March, by mid of March, more or less exams are over for up to at least class 9, the internal exams of a school. So I am willing to have a target कि मैं मार्च का टारगेट बढ़ाऊँ, मार्च का जो मेरा सेल है उसी को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, उसी को मैं थोड़ा सा हाइक पे ले जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा मार्च का वैल्यू को, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने 9 से लेकर 4 तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, आप यहाँ पर कुछ कमेंट देना चाहते हैं कमेंट दे सकते हैं। ये लिख देता हूं मैं, डेटा ऑफ करंट ईयर, इसको ओके कर देता हूं। इसको जैसे ओके करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको पूछा जाएगा कि आपको कुछ चेंज करना है क्या। तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे करंट ईयर का डेटा है, मैं पर्पसली रखा है, ठीक है। इसका पर्पस आपको बाद में समझ में आएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए करंट नाम से सिनेरियो ऐड हो गया। एक मैं फिर से ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ये मेरा फ्यूचरिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक मेरा कमिंग सेशन का या कमिंग क्वार्टर का, ये कमिंग ईयर का मेरा प्लान है। सेल का वैल्यू सेम रहेगा E3 से E9। इसको मैं कमेंट में ऐड कर देता हूँ बेस्ट केस सिनारियो। ये बेस्ट केस सिनारियो में लेके जाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बेस्ट केस सिनारियो, तो मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरा अभी मार्च में फोर्टनाइट में मैंने 9 यूजर्स को सेल किया था, मैं चाहता हूँ कम से कम 50 यूजर्स को सेल करूँ सारे गेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्सपेक्ट सारे वैल्यूज को, सारे सेल का वैल्यू को मैं 50 करके मैंने सेट कर दिया। मैं चाहता हूँ सारे को मिनिमम मैं 50 सेल करूँ, और उसको मैं ओके कर दूंगा। जैसे ओके कर देंगे ये आपका एक ऐड हो गया। अभी इसका यूज मैंने नहीं किया है, फिर से ऐड में जाएंगे, मैंने बस क्रिएट किया है सिनेरियो। एक मैं कर देता हूँ पेसिमिस्टिक, सेम
इसको मैं कर देता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पर मैं वर्स्ट बेस्ट की भी सोच रहा हूँ और वर्स्ट की भी सोच रहा हूँ। उस केस में यहाँ पर मैं 9 को मैं कर देता हूँ सारे का मिनिमम मैं 5 पीस तो बेच लूँ 5 यूजर को। ठीक है, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए, अभी भी आपका जो डेटा दिख रहा है स्क्रीन पे मार्च के वैल्यू पे फोकस करेंगे आप। अभी आपका जो डेटा दिख रहा है किस पे है, करंट वैल्यू है। ठीक है, ये करंट आपका दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं ऑप्टिमिस्टिक में क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने डबल क्लिक किया ऑप्टिमिस्टिक पे, या क्या हो गया 50-50 वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आपका टोटल इनकम भी चेंज हो गया। तो ये है सिनारियो का पर्पस। आप पेसिमिस्टिक में जाएंगे, देखिए 5 हो गया, वैल्यूज चेंज हो गया। तो इस तरीके से सिनारियो का यूज कर सकते हैं। आप किसी बोर्ड मीटिंग्स पे हैं, कंपनी की एक टारगेट है कि मुझे इतना सेल करना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर मंथ में, तो उसका क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उस केस में वो 3 तरह के या 4 तरह के अपने हिसाब से सिनेरियो क्रिएट करके रख सकती हैं, जो भी उनका टीम है, और उस टीम के मेंबर्स अपने मैनेजमेंट के सामने डेटा को शो कर सकते हैं कि सर इफ यू गो विद द 50 फिगर वी हैव दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू, इफ यू हैव गो विद द टारगेट ऑफ in the worst case if you have only 5 sell in each month then we have this revenue। तो इस तरीके से हम लोग सिनारियो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिनारियो। सिनेरियो के ठीक बाद है आपका, अब इसमें जिसको भी आपको रखना है, मैं ऑप्टिमिस्टिक जैसे रखना चाहता हूँ, इसको क्लोज करना होगा तो उसी में वो दिखेगा आपको। ठीक है, इसको हटाना है तो अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए, या फिर आपको फिर से एक्चुअल में आना है तो यहाँ पर करंट में जाकर इसको डबल क्लिक कीजिए, आपका क्लोज कर दीजिए, इसी में रह जाएगा। इसमें से किसी को भी हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चेंजेस करना है वैल्यूज का, 550 की जगह कुछ और वैल्यूज डालना है, एडिट में जाइए। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस यूज करते हैं इसका सिनारियो का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गोल सीक। ठीक है, तो गोल सीक इसी में भी हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, लेट मी जस्ट डिलीट सिनारियो, मैंने सारे सिनारियो को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा एक्चुअल फिगर था शुरू से। ठीक है, अब गोल सीक कैसे यूज करते हैं। गोल सीक का पर्पस क्या है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने 4 पेपर का एग्जाम्स दे दिया है, आपका 4 पेपर का परसेंटेज आ रहा है मान लीजिए 85-87%, आपका 5th पेपर का एग्जाम बाकी है, आप चाहते हो कि आपका 90 प्लस हो, तो आपके लिए एक कैलकुलेशन दिमाग लगाना होगा कि आपके 5th पेपर में कितना का मार्क्स का आपको कम से कम मिनिमम स्कोर करना होगा कि आपका जो बॉर्डर लाइन है 90 प्लस हो जाए ओवरऑल परसेंटेज। तो उस केस में गोल सीक तरह के फीचर्स का यूज करते हैं हम लोग। तो गोल सीक करने के लिए आप नॉर्मली सेल पे कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, डेटा में ही जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक में जाएंगे। ये आपको 3 ऑप्शन आएगा। सेट सेल यानी किस सेल का वैल्यू को आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसी को चेंज करता हूँ, टोटल इनकम का वैल्यू को, इसलिए यहाँ पर F10 दिख रहा है। ठीक है, आप किसी भी सेल को चेंज करते हैं, एक ही सेल सेलेक्ट करना होगा। क्या चेंज करना है, अभी टोटल इनकम कितना दिख रहा है आपको 17,340 रुपीज। मैं इसको F10 को ही चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको 50,000 करना चाहता हूँ। ठीक है, 50,000 रुपये का मेरा टारगेट है कि मैं 50,000 का इनकम करूँ। अब 50,000 इनकम करने के लिए आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना होगा, आप सारे सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पर मतलब मान के चलिए आपका सबसे मिनिमम, आप देख रहे हैं कि आपकी सबसे अच्छी सेल है मार्च में क्रॉनिकल्स की, तो आप क्रॉनिकल को ही सिलेक्ट कर लीजिए कि आप उसको कितना क्वांटिटी बढ़ाएंगे कि आपको 50,000 सेल आ जाएगा। तो मैंने देखिए 21 को सिलेक्ट किया, इसका सेल एड्रेस यहाँ पर आ गया बाय चेंजिंग सेल में, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए E7 इसने इसका सेल एड्रेस ले लिया, ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग पे लिया डॉलर साइन का यूज करके। अब मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए 50,000 आ गया। कितना पीसेस सेल करना होगा क्रॉनिकल के, 383 पीसेस। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। आप कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग इसका। इसमें हम लोग देखना चाहते हैं एसेट वैल्यू में, हम देखना चाहते हैं पबजी, इसका सेल कितना है, टोटल कलेक्शन 5,000 का, मैं इसको करना चाहता हूँ 20,000। किसको चेंज करके आप 20,000 अचीव करना चाहते हैं, इसका प्राइस को चेंज करके या इसके किसी मंथ के क्रॉस कॉस्ट को चेंज करके। मैं इसको प्राइस को चेंज करके करना चाहता हूँ। ओके सॉरी, इसके प्राइस को मैं क्या चेंज करूँ कि मेरा 20,000 का सेल हो। ठीक है, देखिए
800 करना होगा, तब मेरा बिना क्वांटिटी चेंज किए इसका प्राइस टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगा 20,000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल और एक दे देता हूँ। गोल सीक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है, इसको मैं दूसरे यहाँ पर आपको दे देता हूँ गोल सीक का। ठीक है, ये हटा देते हैं। लेट मी जस्ट क्लिक इन सीट टू में मैंने कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स लिख के रखा है, ये आपका एग्जाम्पल बुक में भी है। ठीक है, हिंदी का मार्क्स है, इंग्लिश में है, मैथ्स का है, साइंस, सोशल साइंस, आईटी का मार्क्स यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो अभी परसेंटेज कैंडिडेट्स का आ रहा है 67.5%। यहाँ पर परसेंटेज वाले में देखिए फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, सम B2:B7, यानी हिंदी से लेकर आईटी, आईटी का भी मार्क्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो आईटी को भी मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट, मतलब उसको मेरे टोटल में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए B2 से लेकर B7 तक मैंने टोटल किया है और उसको डिवाइडेड बाय 6, टोटल 6 सब्जेक्ट। अब इंटर मैंने प्रेस किया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अभी मेरा आईटी का एग्जाम नहीं हुआ है, मेरा परसेंटेज आ रहा है 67.5%। अब मैं गोल सिक का यूज करता हूँ और मैं चाहता हूँ B8 सेट सेल, यानी ये जो है परसेंटेज वाला B8, इसको मैं करना चाहता हूँ 80। चलो बहुत ज्यादा हो गया, अच्छा 80 करते हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग सेल, मतलब मुझे 80 चाहिए तो ओवरऑल परसेंटेज अभी 67.5 है। चेंजिंग सेल यानी किस सेल का मार्क्स हमको, वेरिएबल ये है वेरिएबल सेल, आईटी का मार्क्स मुझे नहीं पता, तो कितना लाना होगा कि इसमें 80 आएगा, देखते हैं। 75 स्कोर करना होगा, देन आई कैन गेट 80 ओवरऑल परसेंटेज। तो इस तरीके से आप गोल सीक का अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको अपने अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन गोल सीक। अब हम लोग देखते हैं सोल्वर का यूज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है आपके बुक में सोल्वर। सोल्वर क्या है, गोल सीक का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसमें आपको कंडीशंस मल्टीपल यूज करने के लिए मिलते हैं। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी का मार्क्स है, इंग्लिश का है, मैथ्स का, साइंस, सोशल साइंस, आईटी का मार्क्स नहीं है। अभी ओवरऑल परसेंटेज आपका 67 आ रहा है। अब सोल्वर का यूज हम करना चाहते हैं, यहाँ पर जाएंगे टूल्स में। सोल्वर आपके एक्सेल पे ऑप्शंस नहीं दिख रहा है वो, ठीक है, वो गोल सीक को भी सोल्वर की तरह कहा जाता है, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट यू थ्रू द कैल्क ओनली, क्योंकि आपका जो बुक में स्टेप्स है मोरलेस गोल सीक और व्हाट सिनारियो का सिमिलर है। ठीक है, लेकिन सोल्वर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कैल्क में। लिसन प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस कि सर आप एक्सेल कभी यूज कर रहे हैं कभी कैल्क यूज कर रहे हैं। मैं बस उसी प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहता हूँ जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। जहां तक स्टेप्स की बात है तो वो आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वो आपको बहुत ब्रीफ में खुद से डिजाइन करने की आदत डालनी पड़ेगी। कोशिश करूंगा मैं कि जितने भी इस तरह के स्टेप बेस्ड क्वेश्चन है अगर एक्सरसाइज में, तो उनके स्टेप्स को मैं खुद से ड्राफ्ट कर दूं जो कॉमन हो, यूनिफॉर्म हो और सारे स्टूडेंट्स उसको अपने आंसर शीट्स में अपने कॉपी में लिख पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा जरूरी है कि आप टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिकली समझ पाए कि उनका यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल कि आपका वो एक्सेल में कर रहे हैं या कैल्क में कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी है समझना और उन चीजों को क्लियरली दिमाग में ग्रैब करना। बिकॉज स्टेप्स आई एम वेरी मच श्योर दैट यू कैन लर्न जस्ट फॉर राइटिंग पर्पस in a day or two. Just one, just in one go we have to give the steps and you can just copy it and just make a proper understanding of it that how to write it in copy. तो देखिए सॉल्वर के लिए यहाँ पर जाएंगे टूल्स में, सॉल्वर ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब बोल रहा है टारगेट सेल क्या है। ठीक है, मतलब आपको सेल किसको चेंज करना है, परसेंटेज को। ठीक है, वैल्यू ऑफ उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तीन तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो मैं इसको करना चाहता हूँ 80। क्या करना चाहता हूँ 80 बाय चेंजिंग सेल, मतलब मैं दो सेल को चेंज करना चाहता हूँ, सोशल साइंस और आईटी। तो यहाँ पर मैंने दो सेल का रेंज सेलेक्ट कर लिया, B7:B8। अब आप बोलेंगे कि B7 और B8 दो सेल क्यों लिए सर, आईटी का ही तो सिर्फ एग्जाम नहीं दिया है, तो उसमें दो सेल का पर्पस हम लोगों को समझ में नहीं आया। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि सोल्वर का काम ही है कि एक से ज्यादा कंडीशन को फुलफिल करना। देखिए अभी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप दीजिए इस सेल का एड्रेस।
ठीक है, यानी आप आईटी का जो मार्क्स है आप चाहते हैं ज्यादा हो, ठीक है, आईटी का जो मार्क्स है ज्यादा या बराबर हो किससे, सोशल साइंस से। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मुझे परसेंटेज कितना चाहिए, 80 चाहिए, अभी कितना है 67। बाय चेंजिंग सेल यानी किस किस सेल के चेंज वैल्यू को चेंज करके, सोशल साइंस और आईटी को चेंज करके। तो मुझे आईटी का वैल्यू ज्यादा चाहिए किससे, ज्यादा या बराबर चाहिए किससे, सोशल साइंस से, ठीक है। 86 मिनिमम हो या 86 से ज्यादा हो, किसका वैल्यू, आईटी का। तो उस केस में हम यहाँ पर ये कंडीशन डाला मैंने, B8 सेल रेफरेंस में वैल्यू B7 से ज्यादा या बराबर हो। सॉल्व जैसे ही करेंगे, ओ माय गुडनेस, दिस इज 164। लेट मी गेट इनटू रिस्टोर प्रीवियस, वेट। देखिए मैंने क्या किया था, आपको कहा कि मुझे वैल्यू परसेंटेज का 67 की जगह 80 चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया कि सोशल साइंस और आईटी का वैल्यू मुझे चेंज करना है, और मैंने सेल रेफरेंस, मुझे ये जो चाहिए ये मुझे चाहिए ज्यादा, साइंस से ज्यादा चाहिए, सोशल साइंस से ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया B6। उस केस में अब अगर आप सॉल्व में क्लिक करेंगे, देखिए क्या किया इसने, साइंस का वैल्यू 76 था, 72 कर दिया, ठीक है। देखिए इसको मैं रिस्टोर प्रीवियस करता हूँ, अभी आप देखिए, सॉरी साइंस का वैल्यू 72 है, सोशल साइंस का वैल्यू 86 है, आईटी में अभी मार्क्स नहीं आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया करता हूँ 72 86 0। जैसे मैं सॉल्व में क्लिक करता हूँ, देखिए 72 92 72, उसने क्या किया, 72 के बराबर ही रखा मार्क्स आईटी का, क्योंकि मैंने कहा था ज्यादा या बराबर। उसने सोशल साइंस के मार्क्स को चेंज कर दिया, और यहाँ पर जैसे मैं कीप रिजल्ट करूंगा, देखिए परसेंटेज को भी उसने क्या कर दिया, 80 कर दिया। मुझे 80 भी चाहिए था, और मुझे आईटी का मार्क्स साइंस के बराबर या ज्यादा भी चाहिए था। और मैंने सोशल साइंस का मार्क्स क्यों चेंज किया हुआ, क्योंकि सोशल साइंस को भी मैंने सेलेक्ट किया था चेंज ऑफ सेल में, ठीक है। तो जिस जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उस सब्जेक्ट का मार्क्स आपका चेंज हो जाएगा, और आपका जो परसेंटेज डिजायर है ओवरऑल परसेंटेज वो भी आपका आ जाएगा। तो सोल्वर बेसिकली गोलसिक का ही एक एक्सटेंडेड या एडवांस वर्जन हम लोग इसको बोल सकते हैं, जो हम लोग एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका आज के लिए 3 ऑप्शन था, गोलसिक, सिनारियो एंड सोल्वर। Once again, I would suggest every one of you, if you have the resources, please do practice of these things again and again, then only you will understand. Otherwise, after only going through my practical demonstration, maybe for the timing you've heard of, you've just got the things very clearly. But in a long run, it's only about the practice. So this is what we have for the day. जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके इसके बाद में, देखिए स्लोली हम लोग जा रहे हैं, इससे लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि चीजें अगर मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको बता दूंगा तो हो सकता है आपके लिए चीजें स्किप करें। चैप्टर लंबा है, हम लोग चलेंगे इसी फ्लो में, अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा अपना जो पेस है उसको बढ़ाएंगे अगर जरूरत पड़ी, अदरवाइज दिस इज ओके विथ अस। सो दिस इज व्हाट वी हैव, एंड जो भी आपको होमवर्क है आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, स्टे हैप्पी।